हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। इसमें हम आज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। यानी देखा जाए तो 12वां चैप्टर जो इतिहास का है उसमें प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, खास तौर पे जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए। कहते हैं इसमें बहुत कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा, लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात मैं साफ कर दूं कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussion of the most important point here, evolution of the administrative structure under to Delhi Sultanate. There is the most important here. They are part of the administrative system and institution chapter. There is first point is the most important here. When the Qutbuddin Aibak established himself as an independent sultan at the Lahore, there is available of the administrative apparatus was continually in their initial of phase. The prevalence of the structure was not altered to the distribute and as along as the local rulers is recognized there is a supremacy of the sultan in Delhi. There is allowed to be collect to the taxes and send it to their center to ensure as the tribute. The center officially in this area were it mainly to be help the local rulers in their administrative task. With the expansion and is a consolidations of the Delhi Sultanate, and a new administrative institution also started to emerging. The administrative structure and institution introduced in India were influenced by the Mongols and Seljukids, etc., and both by the naval rulers. There's the new rulers here. The exciting the administrative institution in the different part of the country also contribute in giving shape to the new system. There is the most important here, a evolution of the administrative structure under Delhi Sultanate. There is the most important here. The sultans were aware of fact that they had to rule over a subject, a population that was largely non-Islamic. Thus, the Sultan of Delhi had to be introduced a particular measure to suit and the prevalence of condition in the Sultanate. And from the administrative point of the view, their local level administration, and it is seen was left mainly in the hand of the village headman and etc. There is a large extent of Sultanate is necessitated to the evolution of the administrative structure and separate from the center and province. Thus, during the Sultanate periods, the administrative institution emerged at a different level, center and provisional and the local. Let us now to examine various components of the administrative system in detail. The next is the most important topic arrive here, administrative system. There is a most important here, administrative system of their system of institution. And here, during the Sultanate period of administrative apparatus was headed by the Sultan, who was helped with the various nobles, and there is a various other office is along with their office of the Sultan.
And theoretically, is there was a consular of the minister is a Majlis as a Kulawat as assist the Sultan. There is a most important here. The minister assists the Sultan. The first here point is according to their administrative system, the Sultan. The Sultan is the most important point here. The most important here, Sultan. The Sultan was the center figure in the administrative setup. There is the most important here. The Sultan was the center figure in the administrative setup, and he was the head of the civil administration and supreme commander of army. He made all the appointment and promotions, and he also had the right to the remove anybody for the service. There is the most important job here, and he had a suit to power in the hand, and he was also the head of the judiciary. There is the most important here, and he used to be a confer title and honors upon the people. Theoretically, the Sultan had on the accelerated to the opposition, but is actually a practice difference Sultan enjoyed to the wearing power. The position of the Sultan was the way under pressure from the powerful group of nobility and the ulema. Sultan of Delhi, a particularly their powerful Sultan, adopted to various strategies to the keep these groups under to the control. The Balban keep to the noble formally under to his control. Thus, the personality of the Sultan is a play a significant role in the administrative structure of the Sultanate. Under to the capable and strong Sultan, there is administration as there is the administrative structure of functioning well, but under to the influence and the big ruler the same and was under to the pressure. The next here is a part of the administrative is the nobility. The noble where is the most important functionary of the state and enjoy the high social status. In the initial stage, and there is those is a commander who come in their victorious army. Over a period of time, their descendant formed their main strength, and some Indian group also emerged. The position and the power of the nobility is varied from time to time as has been to be mentioned above. The nobles are particularly those who were to base at Delhi, emerged as a very powerful group and at a time even play a role in the section of the Sultan. The nobility was not a homogeneous class, where a different group within the nobility, and often there were in enter group of clashes and the rivalries. There are classes between the Turkish and the Tajik nobles started during the time of Iltutmish and become intense after his death. The group of is a Chahlanga, a group of 40 nobles, which is created by the Iltutmish and also emerged very powerful. The Balban was the first sultan to wearing the nobility formally under to control. Interestingly, there has had been to be part of the Chalas Gan earlier, and the Kutubuddin Aibak and the Iltutmish has a considered to the noble at the par with himself, but Balban there is a maintained to distance from the nobility and enforce it to the strict code of the conduct for himself and for the nobility. No loose talk about the laughter was allowed in the court. There is the most important provision here, and he also the emphasis on the high blood and made it is a criteria for the occupying to the high position and office. With the extension of the Delhi Sultanate, there also is an attempt on the part of the different section of the society to join to nobility. Initially, it was the preserve of there is a Turk only. During the ruler of the Khalji and Tughlaqs, their doors of the nobility were is open to the people of the devils to the backgrounds. The low caste system, the both Hindus and the Muslim joined the nobility and as could be rise to the high position, especially under to the Muhammad bin Tughlaq. There is the most important here. And during the Lodi period, there is Afghan concept of the equality of become an improvement when the Sultan was a considered first among equal. There is the most important point here. The first among equal, there is a time of
Sultan of the Afghanis, the Lodi period. Thus, the novel enjoyed the equal status with the Sultan. Some of the Lodi Sultan, like Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi, found his uncomfortable and tried to wearing to the novels under their control. The novel resisted with his resulting in the trouble over the both the sultans. The next is administrative is the most important here, ulema. The ulema is the most important, and third part, the religious is and actually is a group of Muslim was a collective referred as a ulema. The people of this group is a managed to the religious matter and interpret a religious regulation for the sultan, and they were also in charge of the judiciary matter and work as a causes at the various level. It was a quite influential group and commanded respected of the sultan and nobility, and they also had influence among to the Muslim masses. This group used to the pressurize the sultan to run the sultanate as per the religious law of the Islam. The sultan and nobles generally try to run the administrative affair as per the need of the state rather than to the religious law. Sultan like Alauddin Khalsi could be ignored the opinion of ulema on the number of issue, but some is a follow their line. That is the most important part here of administrative. यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास, यानी ये जो है हमारा टॉपिक है और चैप्टर जो हम कर रहे हैं प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको विस्तार से जानने का मौका मिला है, तो इसको जो है इग्नोर करने की कोशिश ना कीजिए, जितना हो सके इसको समझिए। कहते हैं एक दो बार समझिएगा आपको पूरा चैप्टर ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब कहते हैं पूरा चैप्टर ही आपको समझ में जब आ जाएगा तो आपको लिए एमसीक्यू क्या और क्वेश्चन आंसर क्या, हर चीज़ के लिए आप जो होगे तैयार हो जाओगे, चाहे एग्ज़ाम के लिए हो चाहे आपको जो हो किसी कंपटीशन के लिए हो, हर कंडीशन में जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए कोशिश यही किया जाता है कि आपको जो है अच्छे समझाने की कोशिश करें। देखिए कहते हैं कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, जो कोशिश करता है उसका विजय संभव होता ही है। इसी यकीन के साथ जो है तिरपान स्टडी सेंटर सदैव जो है कार्यरत है, हमेशा कोशिश करता है कि आपको अच्छे से अच्छे करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यहाँ पर यही बात आती है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे का विकास किस प्रकार हुआ। तो कहते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में स्वतंत्र जो है सुल्तान के रूप में स्थापित किया तो उस समय मौजूदा प्रशासनिक तंत्र आरंभिक अवस्था से गुजर रहा था, यानी आरंभिक यानी स्टार्टिंग था। जब तक स्थानीय शासकों ने दिल्ली के सल्तनत की स्वच्छता को स्वीकार किया तब तक मौजूदा ढांचों में ना तो कोई परिवर्तन किया गया और ना ही उसे छेड़ा गया, क्योंकि अगर छेड़ा जाता तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। उन्हें सिर्फ एक वसूल कर उसे जो है खिराज के रूप में केंद्रीय खजानों में भेजने की अनुमति थी, और इन क्षेत्रों के केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य कार्य स्थानीय शासकों का उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देना था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार और जो है सुदृढ़ीकरण में नई प्रशासनिक संस्थाओं का भी उदय होने लग गया। तो कहते हैं नए बदलाव आएंगे तो नए संस्था नए रूल रेगुलेशन तो उदय होगा, ये तो जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक ढांचा और नए प्रशासकों को यानी शासकों द्वारा भारत में प्रतिपादित संस्थाओं पर जो है मंगोल सेल्जुकिड्स आदि का प्रभाव बहुत ही अधिक था। देश के विभिन्न भागों में मौजूदा संस्थाओं ने भी नई प्रणाली का निर्माण करने में भी योगदान दिया। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है प्रशासनिक ढांचा। कहते हैं सुल्तानों को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें जिस प्रजा पर शासन करना था उसमें गैर इस्लामिक लोगों की संख्या अधिक थी, यानी गैर इस्लामिक का मतलब होता है जो इस्लाम नहीं मानते थे। यानी आपको पता है कि भारत में अगर राज्य करना था तो उस समय हिंदुओं का प्रभुता था, और हिंदुओं के ऊपर राज करना कहते आम बात नहीं थी। इसलिए जो था उस समय के जो सुल्तान हुआ करते थे इस बात पे जो है विशेष जोर दिया करते थे कि यहाँ के जो लोग हैं गैर इस्लामिक हैं
और हमारे मस्जिद के भी नहीं है। तो इनके लिए जितना हो सके इनकी भलाई अगर हम करेंगे तो ये हमारे साथ देंगे, अगर इनके लिए कुछ भी हमने बुरा किया तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे। तो ये सुल्तान जो है बेखूबी जानते थे और समझते थे इस बात को। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों को जो है सल्तनत की मौजूदा परिस्थिति का अनुकरण कुल बनाने के लिए खास उपाय करने पड़ते थे, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जैसा परिस्थिति होता है वैसा ही ढलना हर एक व्यक्ति का जो है स्वभाव होता है। ये आपके लिए भी लागू होता है दोस्तों कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप भी अपना पढ़ाई लिखाई को जो है थोड़ा तेज कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना। कहते हैं जैसा परिस्थिति होगा वैसे ही आपको ढलना चाहिए, यही एक विद्यार्थी का गुण होता है। कहते हैं प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा महसूस होता था कि जो है स्थानीय प्रशासन मुख्यतः गांव के प्रधान आदि के हाथों में आ गया था। तो ये जनरली सी बात है, कोई नया सल्तनत आपको पता है देखने को मिला भी था कि कुछ ही समय बाद जो था सल्तनत की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो जाती थी। तो इसमें जो है राजा तो आते जाते जा रहे थे, लेकिन मुखिया जो था उसके हाथों में आ जाना एक स्वाभाविक बात था। सल्तनत की सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रांतों के लिए प्रशासनिक ढांचे का अलग से विकास करना आवश्यक था, और इस प्रकार सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सतहों पर प्रशासनिक संस्था का विकास भी काफ़ी जोर से हुआ। अब हम प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न घटकों के विस्तार से जानेंगे कि प्रशासनिक प्रणाली में कौन कौन सी व्यक्ति का क्या महत्व होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आधुनिक युग में तो आपको पता ही है कि प्रशासनिक में कौन कौन लोग होते हैं। कोई राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। लेकिन आपको पुराने समय में भी जानना चाहिए कि पुराने समय में आखिर कैसा वहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली थी, कौन मुखिया होता था, उसके नीचे कौन कार्य करता था। तो इसी के बारे में जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर में बने रहें। हमारा जो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण है प्रशासनिक प्रणाली। जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्रशासनिक प्रणाली के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक तंत्रों का जो है प्रमुख सुल्तान होता था। ठीक है, उस समय जो मेन होता था सुल्तान यानी राजा। राजा को ही सुल्तान के नाम से जाना जाता था। जैसे आपको पता है कि अभी के समय में राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च होते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यरत होते हैं। तो उसी तरह उस समय जो था सल्तनत के मुख्य जो होते थे सुल्तान हुआ करते थे। उच्च अधिकारी राज काम में सुल्तान की सहायता करते थे। जितने भी मतलब उच्च अधिकारी होते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सब सुल्तान की सहायता किया करते थे। सुल्तान के कार्यकाल के साथ अन्य कार्य भी थे। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद, जिसको हम मजलिस ए जो है खलवात थी, यानी अभी हम इसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय मजलिस ए खलवात के नाम से जाना जाता था, जिसमें सारे मंत्रियां हुआ करते थे। जैसे कि आपको भी पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो मंत्री परिषद का गठन होती है, जैसे रेलवे मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, तो सारे होते हैं, आपको पता ही है। तो उसी तरह मजलिस ए खलवात में सारे मंत्री हुआ करते थे, जो हर कोई अपना विभाग को संभालने में अग्रसर होते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए तो हमारा जो पहला पॉइंट आया है सुल्तान। देखिए सुल्तान कौन है। सुल्तान के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो इस लाइन से आपको साफ समझ में आएगा कि सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान पर होता था। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में कौन होता था, केंद्रीय स्थान पर होता था। वह नागरिक प्रशासन का प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। अगर अब यही प्रश्न मैं पूछूं, अगर भारत की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है तीनों जल, थल और वायु सेना का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, कौन होता है प्रमुख? तो आप कहोगे कि सबका जो प्रमुख कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बात सच्चाई है। तो राष्ट्रपति आपको पता है कि भारत का सुल्तान कह लो, किंग कह लो, ठीक है। तो क्योंकि सबसे बड़ा पद जो होता है हमारे भारत में राष्ट्रपति के ही होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के होते हैं। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो ये बात अभी के समय का है। लेकिन यही बात अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो यहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो होती हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन सीनेट जो होते हैं उनके भी कार्य शक्तियाँ होती है, और जो न्याय प्रणाली होती है यानी उच्च न्यायालय की शक्तियाँ भी होती है। अगर आपने अमेरिका की शक्ति पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि मेन जो होते थे जो है राष्ट्रपति ही हुआ करता था, जिसको हम सुल्तान के नाम से उस समय जानते थे। सुल्तान सभी दरबारियों की नियुक्ति करता था और उसको तरक्की भी करता था।
नियुक्ति करने का सारे कार्य सुल्तान का होता था और उसको तरक्की देने का कार्य भी सुल्तान स्वयं ही करता था। वह किसी को भी अपने दरबार से निकाल सकता था क्योंकि उसके पास सारी शक्तियाँ मौजूद थी। वह सर्वशक्तिमान था, इसलिए सभी शक्तियाँ उसके हाथों में थी तथा वह न्यायक शक्ति का भी स्वच्छ स्वामी था, यानी न्याय करने का प्रणाली भी सब के सब जो था सुल्तान के हाथों में ही था। सुल्तान लोगों को उपाधियां और सम्मान प्रदान करता था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सिद्धांत सुल्तान का जो है पद ऊंचा होता था। सिद्धांत जोड़ी जनरली सी बात हो गई कि सुल्तान का पद सर्वोच्च होता था, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियाँ घटती बढ़ती रहती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि ऐसा कभी समय आया है जब राजा को उठा के जो है उखाड़ के लोगों ने फेंक दिया है। कहते हैं हर जगह ऐसा ही होता है कि सल्तनत जो है प्रजाओं से चलती है। कहते हैं प्रजाओं को आप जितना खुश रखने की कोशिश करोगे उतना जो है अच्छा प्रशासन चलेगा। ये हर एक मंत्री को बात समझना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जितना अच्छा रहेगा उतना ही अगले टाइम में उनको जीतने की संभावना बढ़ जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र में विकास की जो है नाम मात्र के भी नहीं करोगे तो आपको अगली बार कौन जिता देगा। तो सुल्तान को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि भाई उनकी राजसी तभी रह सकती है जब उन जो सुचारू रूप से कार्य कर सके, क्योंकि राजा एक होता है और प्रजा लाख करोड़ों में होता है। तो कौन जीतेगा, राजा जीतेगा कि प्रजा जीतेगी? जनरल सी बात है, प्रजा ही जीतेगी क्योंकि करोड़ों में है। इतने प्रजाओं को जो है सुल्तान के लिए मारना भी संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा ये बात अभी के समय हो या पुरातन समय में हो, हमेशा याद रखना चाहिए जो भी उच्च पद पे हैं उनकी पद की गरिमा को समझना चाहिए और जो है सही न्याय प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए और जग कल्याण के रूप में ही फैसला निहित करना चाहिए। सुल्तान पर हमेशा ही अभिजात वर्ग और उलीमा का दबाव बना रहता था। जर्नली सी बात है, बना रहना स्वाभाविक बात है क्योंकि उस समय अभिजात वर्ग और उलीमा जो था काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था। दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तानों ने इस वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई। कहते हैं अगर आप अभिजात वर्ग और उलीमा को कंट्रोल में कर लेते हो तो आप आधे जो है शक्ति आपके हाथ में चली जाती है। कहते हैं जब बाबर ने भारत में आक्रमण किया था तो बहुत से जो है अभिजात वर्ग उसको छोड़ के चला गया था, तो उसका पावर बहुत डाउन हो गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। उलीमाओं का भी अपना महत्व होता है। अगर आपने हिटलर की ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे तो उसने जो है चर्च के पॉप्स को अपने अंडर पहले किया था, क्योंकि उसको पता था कि पॉप हमारे अंडर रहेगा तो 100% जो होती है सारे नागरिक उसके साथ रहेगा, क्योंकि नागरिक जो थे पॉप की ही बात माना करते थे। तो सबने ऐसा ही किया क्योंकि इससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बलबन ने अभिजात वर्ग को कड़े नियंत्रण में रखा और इस प्रकार सल्तनत की प्रशासनिक ढांचे में जो है सुल्तान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। योग्य और शक्तिशाली सुल्तानों के नेतृत्व में प्रशासन और प्रशासनिक ढांचा बेहतर ढंग से कार्य करता था, लेकिन अयोग्य और कमजोर शासक अभिजात वर्ग के दबाव में कार्य करते थे। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आया है अभिजात वर्ग। देखिए अभिजात वर्ग का जो सल्तनत के समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। कहते हैं सुल्तान की जो नियुक्ति होता था अभिजात वर्ग और उलीमा के अंतर्गत ही हुआ करता था, क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत पूरी जनता जो थी समर्थन प्राप्त होता था। इसलिए अभिजात वर्ग का अपना विशेष स्थान हो गया था। और देखा जाए तो अभिजात वर्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे तथा समाज में इसकी उच्च स्थान भी प्राप्त किया हुआ था। आरंभ में ये सेना के ऐसे कमांडर थे जिन्होंने युद्ध में विजय हासिल भी की थी। कुछ वर्षों से उसके उत्तराधिकारी ने मुख्य शक्ति हासिल कर भी ली थी तथा कुछ भारतीय समूह भी इसे विकसित हुए थे। अभिजात वर्ग की स्थिति और शक्तियों में जो है समय समय पर उतार चढ़ाव होता ही रहता था, जैसा कि ऊपर हमने उल्लेख भी किया जा चुका है। यह अभिजात वर्ग जो मुख्य दिल्ली में स्थापित थे अत्यधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे तथा वे समय समय पर सुल्तान का चयन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया करते थे। अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं थी। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभिजात वर्ग में समरूप श्रेणी नहीं हुआ करती थी। इसमें कई समूह सम्मिलित थे और उनमें अक्सर जो है लड़ाइयों के कारण आपस में दुश्मनी बनी रहती थी। तभी तो भारत में जो है आसानी से जो है दूसरे देशों ने जो है विजय हासिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि ये अभिजात वर्ग आपस में ही लड़ते रहते थे। कहते हैं तुर्कमेनिस्तान के समय में तुर्की और जातिकी कुलीनों के बीच लड़ाई आरंभ हुई और इसके मृत्यु के पश्चात इन लड़ाइयों ने जो है और अधिक जोर पकड़ लिया था। चलरगान समूह जो है 40 अभिजातों का
समूह हुआ करता था। ये आपको पता होना चाहिए कि चलगांव समूह जो 40 अभिजातों का समूह हुआ करता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके अंतर्गत ही सारे कार्य प्रणाली चलती थी। शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं बलबन पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा था। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वयं बलबन भी चलगान की एक हिस्सा था, क्योंकि चलगान का एक हिस्सा होने के नाते वो जानता था कि अगर हम अभिजात वर्ग पे कंट्रोल कर लें तो जो है सल्तनत हमारे जो है नियंत्रण में रहेगा। और ये बलबन बेखूबी जानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात वर्ग अपने बराबर का समझते थे, यानी ये सबसे बड़ी जो थी, इन्होंने भी गलती किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश अभिजात वर्ग को अपने बराबर समझते थे, लेकिन ये गलती बलबन ने नहीं किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने अभिजात वर्ग पर कड़ाई से नियंत्रण रखा। कहते महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं बलबन भी चलगान का एक समूह हिस्सा था और ये बलबन बेखूबी जानता था कि अगर दो ही कंडीशन हो सकता है अभिजात वर्ग को कंट्रोल करने का, या तो हम उसके दबा दें या हम उसको बराबर का दर्जा दे दें। तो यही बलबन ने किया, उसने बराबर का दर्जा न दे के जो है चलगाना को यानी 40 वर्ग समूह को दबा दिया, यानी देखा जाए तो वो अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन ऐसा गलती जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश अभिजात नहीं किया। उसने अभिजात वर्ग को अपने बराबर समझते थे, यानी देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है इल्तुतमिश ने अभिजात वर्ग को अपने बराबर का जो है दर्जा दिया। बलबन ने अभिजात वर्ग से दूरी बनाए रखा था और इसलिए स्वयं के लिए अभिजात वर्ग के लिए कड़ी आचरण संहिता लागू भी किया हुआ था और दरबार में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि दरबार में कोई दूसरे को जो दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था, नहीं हंस सकता था। यानी हंसना भी देखा जाए तो बलबन के समय जो है प्रतिबंधित था, क्योंकि एक बात आपको पता है कि जो हंस जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बलबन जो है खूब बेखूबी जानता था, इसलिए अपने राज दरबार में जो था किसी को हंसने का भी प्रावधान नहीं किया हुआ था। उसने उत्कृष्टता पर बल दिया था और उच्च पद और उच्च कार्यालयों के प्राप्त करने वाले के लिए जो है मानदंड निर्धारित किया गया था, जो कि बलबन का कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समूहों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने के प्रयास भी किए, क्योंकि उनको पता था कि अभिजात वर्ग ही ऐसा वर्ग है जहां पर उनको इज्जत सम्मान मिलेगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार होते ही समाज के विभिन्न समूहों ने अभिजात वर्ग में सम्मिलित होने का सदैव ही प्रयास किया। आरंभ में इस वर्ग में तुर्कों को जो है सम्मिलित किया गया था। खलजी और तुगलकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग के लिए अभिजात वर्ग के दरवाजे खुले हुए थे, यानी कोई भी जो था अभिजात वर्ग के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। विशेष मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों को जो है निम्न जाति के लोग अभिजात वर्ग में शामिल हो गए थे। देखिए काफ़ी प्रशासन की अपनी विशेषता था, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन काल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों को ही बराबर का मौका दिया अभिजात वर्ग में शामिल होने का, और उन्होंने बड़े बड़े पद भी हासिल किए उस समय, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। लोधी काल में समानता की अफगान और अवधारणाएं उस समय महत्वपूर्ण हो गई थी, जब सुल्तान को सामान्य शक्ति वालों में प्रमुख माना जाता था, यानी सामान्य शक्ति वालों में प्रमुख मानने का प्रावधान था, और इस प्रकार अभिजात वर्ग सुल्तान के बराबर की हैसियत भी रखते थे। आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग का कितना महत्वपूर्ण था, जो सुल्तान के बराबर अपनी हैसियत रख सकते थे। कुछ अगर लोधी सुल्तान जैसे कि जो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को यह पसंद नहीं था, और उन्होंने अभिजात वर्ग को जो है सदैव ही अलग रखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है इब्राहिम लोधी के लिए और सिकंदर लोधी के लिए, कि दोनों ने अभिजात वर्ग को जो है अलग ही प्रावधान किया और उसका अलग ही रूल रेगुलेशन को बनाया। उसके पश्चात जो है तीसरा पॉइंट है उलेमा। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव्स के अंतर्गत यानी प्रशासनिक प्रणाली में जो है 3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक होता है सुल्तान का, दूसरा होता है अभिजात वर्ग का, और तीसरा जो होता है उलेमा। अब उलेमा के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि उलेमा कौन होता है और उसका क्या महत्व होता है। जैसे कि आपको पता है उलेमा मुसलमानों के धार्मिक बुद्धिजीवियों के समूह को उलेमा कहते हैं, यानी धार्मिक
बुद्धिजीवियों। तो समझ सकते हो कि ये धर्म से अनुसरण कराते हैं, यानी मुसलमानों के जो है धार्मिक बुद्धिजीवी के समूह को उलिमा कहते थे और इस समूह के लोगों का कार्य धर्म मामलों की जो है व्यवस्था करना था। क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड थी, इसलिए जो है इसको नकारा नहीं जा सकता था। सुल्तान के लिए धार्मिक जो है नियमों का व्याख्या करना था और वह न्यायिक मामलों को भी जो है प्रभावी भी होते थे। यह अत्यधिक प्रभावी समूह था और जो है सुल्तान और अभिजात वर्ग की प्रशंसा भी किया करता था। उनका जो है मुस्लिम जनता में भी काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। कहते हैं उलिमा का जो था उस समय मुस्लिम जनता में काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। जैसे आपको पता ही है कि हिंदुओं में जो होता है, जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका काफ़ी दबदबा होता है। उसी प्रकार जो है मुस्लिम धर्मों में उलिमा का जो है अपना विशेष प्रभाव था और यह समूह इस्लाम के धार्मिक नियमों के अनुसार जो है सल्तनत को चलाने के लिए सुल्तान पर दबाव डाला करते थे कि जो इस्लाम में लिखा हुआ है उसी के अनुसार जो है उनको अपना शासन चलाना चाहिए। यह उलिमा का मानना था। सुल्तान और अभिजात वर्ग अक्सर प्रशासनिक कार्य धर्म और नियम की वजह से राज्य की आवश्यकताओं को अनुसार करने की कोशिश किया करते थे। कहते हैं अलाउद्दीन खलजी जैसे प्रभावशाली सुल्तान ही उलिमाओं का सलाह के कई मुद्दे पर जो है अनदेखी कर सकते थे, लेकिन कुछ सुल्तान उनकी सलाह को मानते थे तो कुछ नहीं मानते थे। तो कहते हैं इसी तरह से जो है उलिमा का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो था प्रशासनिक प्रणाली जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, हमने तीनों विषय पे जो है अच्छे से समझने की कोशिश किया और आपको बताने की कोशिश किया। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए जो है आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलना और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में रहेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।